Hello everyone, how are you? It's me Navid here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So this is the part second of Kashmiri Migrant Paper 2018. In this video I am going to discuss about from question number 61 to 120. So let's start the video. Question number 61 हमारे पास यहाँ पे है Which road is the composition of concrete and asphalt material? Concrete and asphalt material की road को हम क्या कहते हैं? Asphalt, recycling, composite or bituminous? So the correct option here is option C, composite road. Question number 62 is which of the following was the traditional piping material in the plumbing system for the conveyance of water and wastewater? Polybutylene, CPVC, galvanized steel and copper tubing. इनमें से ट्रेडिशनल पाइपिंग मटेरियल क्या है इन द प्लम्बिंग सिस्टम फॉर द कन्वीनियंस ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, इट्स galvanized steel. Question number 63 is how is the drawdown defined regarding static water level and plumbing water level? Drawdown किसके बराबर होता है in terms of static water level and plumbing water level? Drawdown is equal to static water level minus plumbing water level. So option A is correct here. Question number 64 is the thermophilic range of sludge digestion is. Sludge digestion की thermophilic range क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस टू 59 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, 25 to 76 degree Celsius, 50 degree Celsius to 57 degree Celsius. So the correct option here is option D, 50 to 57 degree Celsius. Question number 65 is in which of the following structure canal is to be constructed above drainage as the canal bed level is above the drainage bed level? ये तो बेसिक क्वेश्चन है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क से पूछा गया है कि किस स्ट्रक्चर में हम कैनाल को above द ड्रेनेज कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्वेडक्ट. If the canal is constructed below the natural drain, then the structure is termed as super passage. So level crossing means when both natural water drain and canal meets at the same point. Question number 66 is the friction force develops at the contact surface of two bodies in the direction opposite to motion is called. अब देखो यहाँ पे टर्म्स है विस्कोसिटी, बल्क मॉडुलस, डेंसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी. तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे विस्कोसिटी ही हो सकती है क्योंकि ना तो बल्क डेंसिटी हो सकती है, ना तो डेंसिटी हो सकती है, ना थर्मल कंडक्टिविटी हो सकती है. So the correct option here is option A. Question number 67 is who built the Pakka road in Rajgir of Patna district about 600 years BC ago? राजगीर पटना रोड को किसने कंस्ट्रक्ट किया था about 600 years BC ago? So the correct option here is option B, Bimbisara. Question number 68 is what is the full form of ACSM? ACSM की full form क्या है? A company on surveying and mapping, American Congress on surveying and mapping, Area Campus on surveying and mapping, and American Company on Surveying and Mapping. So the correct option here is option B, American Congress on Surveying and Mapping. Question number 69 is if the anticipated time of fulfillment of a project is 60 weeks with a common difference of 5 weeks, the possibility of finishing the project in 50 weeks and 65 weeks respectively will be. This is also the numerical question. We will discuss it in next video. Question number 70 is which of the following is recognized as large construction? इनमें से किसको large construction recognized किया गया है? एरोनॉटिकल प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स या हाईवे प्रोजेक्ट्स को? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, इट्स रेलवे प्रोजेक्ट्स. क्वेश्चन नंबर 71 इज विच वन इज द डोमिनेंट रेल प्रोफाइल इन वर्ल्ड वाइड यूज? वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा कौन सी टाइप ऑफ रेल यूज़ की जाती है? बार्लो रेल, फ्लैट बॉटम्ड रेल, फ्लैंज्ड रेल या बैलुक रेल? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, फ्लैट बॉटम्ड रेल इज द डोमिनेंट रेल प्रोफाइल इन वर्ल्ड वाइड यूज. क्वेश्चन नंबर 72 इज द स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन कास्टिंग एज कम्पेयर टू स्टील आयरन कास्टिंग इज. कास्ट आयरन कास्टिंग की जो स्ट्रेंथ होती है एज कम्पेयर टू स्टील आयरन कास्टिंग की ज़्यादा होती है, कम होती है, इक्वल होती है या नॉट इक्वल होती है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए. यहाँ पे इनने फिर से गलत ऑप्शन शो किया हुआ है बट द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए. कास्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन जो होती है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू कास्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टील. क्वेश्चन नंबर 73 फॉर व्हाट रीजन ग्रेडर इज यूज्ड? ग्रेडर को किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है या किस रीज़न के लिए यूज़ किया जाता है? फिनिशिंग, शेपिंग या ट्रिमिंग के लिए, रीपिंग के लिए, फिनिशिंग एंड शेपिंग के लिए? सो ग्रेडर को फिनिशिंग, शेपिंग एंड ट्रिमिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 74 इज व्हाट इज प्लास्टिसिटी? सिंपल क्वेश्चन पूछा है, प्लास्टिसिटी क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बिकम डिफिकल्ट, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू स्टिक टू अ मैग्नेट एंड द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू ब्रिंग क्रैकिंग्स इन आयरन. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी. बेसिक क्वेश्चन था ये. क्वेश्चन नंबर 75 इज which method of boring is not suitable for very difficult or cemented soils, very soft soils and fully saturated cohesionless soil? इनमें से कौन सा बोरिंग मेथड है
जो वेरी डिफिकल्ट सीमेंटेड सॉइल्स के लिए सूटेबल नहीं है, वेरी सॉफ्ट सॉइल्स के लिए एंड फुली सैचुरेटेड कोहेजनलेस सॉइल्स के लिए सूटेबल नहीं है। वाश बोरिंग, आगर बोरिंग, डिस्प्लेसमेंट बोरिंग या कंटिन्यू सैम्पलिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, आगर बोरिंग। क्वेश्चन नंबर 76 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज रिलीज्ड इन एन एक्सेस अमाउंट बाय वाटरलॉग्ड सॉइल्स। वाटरलॉग्ड सॉइल से सबसे ज़्यादा कौन सी ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, निट्रस ऑक्साइड या मीथेन। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, निट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 77 इज व्हाट एब्रीविएशन इज यूज्ड फॉर CaO। कैल्शियम ऑक्साइड के लिए क्या एब्रीविएशन यूज की जाती है? A, F, H और C। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78 इज हाउ इज इरिगेशन एफिशिएंसी डिफाइंड। इरिगेशन एफिशिएंसी को कैसे हम डिफाइंड करते हैं? आर सिंपली नोन एज व्हाट इज इरिगेशन एफिशिएंसी। इट इज द परसेंटेज ऑफ अप्लाइड इरिगेशन वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल एंड अवेलेबल फॉर कंजप्टिव यूज बाय क्रॉप, और द डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर inclusive of precipitation, stored moisture or groundwater that is required conceptually for crop production, or the percentage of applied irrigation water stored in the reservoir and available for conceptive use by crop, or the depth of irrigation water exclusive of precipitation, stored moisture or groundwater that is required conceptually for crop production. So the correct option here is option A. Question number 79 is a redundant truss is, redundant truss के केस में कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है? m इज़ ग्रेटर देन 2j-3। अब देखो प्लस वाला फॉर्मूला तो ट्रस्ट के केस में बिल्कुल भी नहीं है, सो इट मीन्स डेट बी एंड सी बोथ आर इनकरेक्ट। अब यहाँ पे बच रहा है आपके पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। तो जो करेक्ट फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे है वो है m इज़ ग्रेटर देन 2j-3, वेयर m रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मेंबर्स, j रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ जॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 80 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैनली फ्लूडिटी द मिक्स एंड इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, मोटर और ग्राउट। अब इनमें से कौन से एडमिक्सचर्स को ऐड करके फ्लूडिटी ऑफ मिक्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, मोटर और ग्राउटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं? फर्स्ट इज गैस फॉर्मिंग एडमिक्सचर, एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर, सुपर प्लास्टिसाइजर्स और प्लास्टिसाइजर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, प्लास्टिसाइजर्स। क्वेश्चन नंबर 81 इज इन फ्लेक्सुरल डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स द फैक्टर्ड मोमेंट स्ट्रेंथ शुड बी डैश डैश देन द मोमेंट काज्ड बाय द फैक्टर्ड लोड। जो फैक्टर्ड मोमेंट स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए या ग्रेटर होनी चाहिए? सो द फैक्टर्ड मोमेंट स्ट्रेंथ शुड बी greater than the moment caused by the factored load. Question number 82 is pick up the correct one. अब यहाँ पे हमने correct option choose करना है. The crucial path is always shortest. The crucial path may be shortest. The crucial path may be longest. The crucial path is always longest. So the crucial path is always longest. I don't think it's crucial path. It must be critical path. So the critical path is always longest. क्वेश्चन नंबर 83 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो के लिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? द पाइप्स विच डजंट फ्लो फुल डोंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ओपन फ्लो चैनल। जो पाइप्स पार्शली फ्लो करती है तो ये कह रहा है कि वो ओपन चैनल फ्लो में नहीं आती है। सेकेंड ऑप्शन इज ओपन चैनल फ्लो इम्प्लाइज डेट द फ्लो इज ओपन टू एटमोस्फियर। ओपन चैनल फ्लो हम उस फ्लो को कहते हैं जिसका टॉप सरफेस जो होगा वो डायरेक्टली ओपन होगा एटमोस्फियर के। इन ओपन चैनल्स फ्लो इज ड्रिवन बाई प्रेशर रादर देन द स्लोप ऑफ द चैनल। इन ओपन चैनल्स द प्रेशर वेरीज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ओपन चैनल्स के केस में प्रेशर वेरी करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सो द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर ओपन चैनल हियर इज ऑप्शन बी। ओपन चैनल के केस में जो फ्लो है वो ओपन टू एटमोस्फियर फ्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 84 इज अपॉन विच ऑफ दिस फॉलोइंग सीपेज ऑफ सॉइल डिपेंड्स। सीपेज ऑफ सॉइल जो है किस पे डिपेंड करती है? सेंसिटिविटी, परमेबिलिटी, कंसिस्टेंसी या विस्कोसिटी। ऑब्वियस सी बात है द सीपेज ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन परमेबिलिटी। अब सॉइल लेस परमेबल है, सीपेज उसमें कम होगी। सॉइल ज़्यादा परमेबल है, सीपेज उसमें ज़्यादा होगी। सो द सीपेज ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन परमेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 85 इज विच वन इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूज ऑफ स्लैग लीड्स इन कंक्रीट। सो अगर हम स्लैग कंक्रीट में यूज़ करेंगे तो इनमें से उसका एडवांटेज कौन सा नहीं है? डिक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, रिफाइनमेंट ऑफ पोअर स्ट्रक्चर्स, रिड्यूस्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड रिड्यूस्ड परमेबिलिटी टू द एक्सटर्नल एजेंसीज। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए। Question number 86 is at the junction of power channel and the penstock a 4 bay is provided in a। so junction of power channel और penstock पे जो हम 4 bay प्रोवाइड करते हैं वो किस में करते हैं? हाइडल सिस्टम में करते हैं, पेनस्टॉक में करते हैं, हाइड्रोलिक रैम में करते हैं या टर्बाइन में करते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, हाइडल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 87 इज विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैकी शेप्ड पार्टिकल। सो फ्लैकी शेप पार्टिकल की कौन सी एग्जाम्पल है इसमें? स्क्रीज, सी शोर, लैमिनेटेड रॉक्स या क्यूबाइड रॉक। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, लैमिनेटेड रॉक्स इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लैकी शेप्ड पार्टिकल।
क्वेश्चन नंबर 88 इज द इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल इज, बेसिक क्वेश्चन है ये। इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम D10 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 इज व्हेन अ WC इज फ्लश्ड और अ बाथ और लेबोरेटरी इज एम्प्टीड द वाटर फ्लोज इन विच पार्ट ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम। सो जब वाटर क्लोजेट को फ्लश किया जाता है, बाथ या लेबोरेटरी को एम्प्टी किया जाता है, तो उस केस में जो वाटर फ्लो करेगा ड्रेनेज सिस्टम में, वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? वर्टिकल में करेगा, वेंट्रल में करेगा, लेटरल में करेगा या हॉरिजॉन्टल में करेगा? So the correct option here is option D, horizontal. Question number 90 is which of the following force is said to occur when Reynolds number is less than 0.1? So जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन होगी 0.1, उस केस में कौन सी फोर्स अकर होगी? लिफ्ट फोर्स, फ्रिक्शनल ड्रैग, डिफॉर्मेशन ड्रैग या प्रेशर ड्रैग? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, डिफॉर्मेशन ड्रैग. Question number 91 is which of the following is not introduced by vendors? Pricing, maintenance operations, assignment or licensing models? So the correct option here is option C, assignment. Question number 92 is also numerical. Let's discuss in next part. Question number 93 is which of the following statement is true for the penetrant test? Penetrant test के लिए इनमें से कौन सा statement true है? Using radioactive isotopes uses high frequency sound waves accomplished by inducing a magnetic field, and last is performed with a डाई सोल्यूशन. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी. पेनिट्रेंट टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग डाई सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 94 इज डिपर शॉवल इज अ डिवाइस दैट हैज द स्मॉलेस्ट सीक्वेंस टाइम. व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इज इट? डिपर शॉवल क्या है? एक डिवाइस है जिसमें स्मॉलेस्ट सीक्वेंस टाइम है. व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इज इट? क्या ये रॉक रूलिंग मशीन है, अर्थ रूलिंग मशीन है, गार्बेज रूलिंग मशीन है या व्हीकल रूलिंग मशीन है? सो डिपर शॉवल जो है अर्थ रूलिंग मशीन है. क्वेश्चन नंबर 95 इज विच इज़ द बेस्ट कॉगलेंट फॉर रिमूविंग द कलर ऑफ वाटर? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन. ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है. सो वाटर कलर को रिमूव करने के लिए जो सबसे मोस्ट और बेस्ट कॉगलेंट है वो अलम है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 97 इज फॉर मीटर स्केल द हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन इज लिमिटेड टू. मीटर स्केल के लिए हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन कितनी लिमिटेड है? 25 डिग्री, 16 डिग्री, 35 डिग्री और 30 डिग्री? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, 16 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 98 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी? अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर विच विल कॉज शेयर फेलियर ऑफ द स्पोर्टिंग सॉइल इमीडिएटली बिलो द फुटिंग, और इट्स द लीस्ट ग्रॉस प्रेशर विच विल कॉज अ शेयर गेन ऑफ स्पोर्टिंग सॉइल बिलो द फुटिंग immediately below the footing, or it's the bearing capacity after applying the factor of safety, or it's the least gross pressure which will cause shear failure of the soil immediately below the footing. So ultimate bearing capacity का मतलब क्या होता है? ये least gross pressure होता है which will cause shear failure supporting soil immediately below the footing. So the correct option here is option D. Question number 99 is a parallel pipe is sometimes installed over a portion of the pipe. A pipe network of municipal water supply is mainly for which reason? एक पैरेलल पाइप को हम कभी कभी इंस्टॉल करते हैं और अ पोर्शन ऑफ पाइप. तो उस पाइप को हम किस लिए वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं या किस लिए वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? व्हाट्स द पर्पस ऑफ दैट पाइप? इंक्रीजिंग द पंपिंग पावर नीड, इंक्रीजिंग वाटर हैमर प्रेशर, इंक्रीजिंग डिस्चार्ज और डिक्रीजिंग द हेड अवेलेबल एट द नोड. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग द डिस्चार्ज. डिस्चार्ज को इंक्रीज करने के लिए वो पैरेलल पाइप हम इंस्टॉल करते हैं और द एग्जिस्टिंग पाइप. क्वेश्चन नंबर 100 इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ वाटर इन अ सिटी? सिटी में डोमेस्टिक कंजप्शन की कितनी परसेंटेज होती है? 30%, 25%, 35% और 10%? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, 35%. क्वेश्चन नंबर 101 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मेजरमेंट बुक? इनमें से मेजरमेंट बुक का कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है? ऑल मेजरमेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन इंक, इट इज एन ऑडिएबल डॉक्यूमेंट, नो एंट्री इज अलाउड टू बी इरेज्ड, और मेजरमेंट्स आर कंटिन्यूसली रिकॉर्डेड विदाउट इंटरप्शन? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, all measurements are not recorded in ink. Question number 102 is which type of particle possesses well defined edges formed at the interaction of roughly planar surface? कौन सी टाइप ऑफ सॉइल जो है जिसकी वेल डिफाइंड एजेस होती है एट द इंटरेक्शन ऑफ रफली प्लानर सरफेस? irregular or partially rounded, flaky, rounded or angular? So the correct option here is option D, angular. Angular type of soil particle possesses well defined edges at the interaction of roughly planar surface. Question number 103 is maximum efficiency is obtained in all reaction turbine if the all types of reaction turbines में maximum efficiency को हम कैसे achieve कर सकते हैं? If the angle of absolute velocity vector at the outlet is 90 degree, if blade angle is 90 degree at the outlet, if blade angle is 80 degree at the outlet, if blade angle is 90 degree at the inlet. So the correct option here is option A, if the angle of absolute velocity vector at the outlet is 90 degree.
Question number 104 is divergent structures, settling, dealing with food come under what type of arrangement? So ये सारी चीज़ें जो है किस टाइप के अरेंजमेंट में आती हैं? इनलेट अरेंजमेंट, ऑब्स्टेकल अरेंजमेंट, वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर अरेंजमेंट. So the correct option here is option A, inlet arrangement. Question number 105 is which among these is an accurate sequence of treatment of typical turbid surface water? So typical turbid surface water को treat करने के लिए correct sequence क्या है इनकी? Coagulation, sedimentation, flocculation or filtration? Coagulation, flocculation, sedimentation or filtration? Flocculation, coagulation, filtration or sedimentation, or sedimentation, filtration, flocculation or filtration? So the correct option here is option B. Typical turbid surface water को treat करने के लिए correct sequence of treatment क्या है? First is coagulation, then flocculation, then sedimentation and then filtration. Question number 106 is minimizing the effect of personal and accidental errors are dealt by the theory of instrumental error, systematic error, error and adjustments are mistakes. So पर्सनल एंड एक्सीडेंटल एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए एरर्स एंड एडजस्टमेंट थ्योरी डील करती है. क्वेश्चन नंबर 108 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशो? ये भी बेसिक क्वेश्चन है. इनमें से किस मटेरियल की हाईएस्ट वैल्यू होती है पॉइजन रेशो की? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, रबर. रबर की हाईएस्ट वैल्यू होती है पॉइजन रेशो की 0.49. क्वेश्चन नंबर 109 इज विच टर्म इज यूज्ड फॉर अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ कोर्स पार्टिकुलेट मटेरियल used in construction including sand, gravel, crushed stone, slag, recycled concrete and geosynthetic aggregates. So इनमें से हम किस टर्म को यूज़ करते हैं ब्रॉड कैटेगरी ऑफ कोर्स पार्टिकुलेट मटेरियल जिसको हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग सैंड, ग्रेवल, क्रस्ट स्टोन एंड रिसाइकल्ड कंक्रीट एंड जियोसेंथेटिक एग्रीगेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए? फर्स्ट इज एग्रीगेट, सेकंड इज asphalt कंक्रीट, थर्ड इज अबटमेंट्स एंड फोर्थ इज बैक स्लोप. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, एग्रीगेट. क्वेश्चन नंबर 110 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कैनाल हेडवर्क? इनमें से कैनाल हेडवर्क का फंक्शन कौन सा नहीं है? ए हेडवर्क इंक्रीजेज फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ सप्लाई इन द रिवर. ए हेडवर्क स्टोर्स वाटर फॉर स्मॉल पीरियड्स ऑफ टाइम. अ हेडवर्क कंट्रोल द एंट्री ऑफ सिल्ट इन टू द कैनाल एंड ए हेडवर्क रेजेज द वाटर इन द रिवर. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए. दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ कैनाल हेडवर्क. क्वेश्चन नंबर 111 इज due to the decomposition of which among these there is the presence of nitrogen in a wastewater sample? प्रोटीन्स की वजह से, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स. सो ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन्स देयर इज द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन अ वेस्ट वाटर सैंपल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 112 इज टेंसाइल स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग पुल्स अ. इनमें से किसके पुल की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस जो है स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो सकता है? लॉग को पुल करने से, कॉर्ड को पुल करने से, बकेट या बोल्डर को पुल करने से. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 113 इज व्हाट डज लिबरेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड व्हेन सीमेंट रिएक्ट्स विद वाटर? सो जब सीमेंट जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में जो लिबरेशन ऑफ हीट है उसको हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ पल्पेशन, हीट ऑफ डिसिपेशन और हीट ऑफ एक्सक्लेप्शन. ये भी बेसिक है. हीट ऑफ हाइड्रेशन, जब सीमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है जो हीट प्रोड्यूस होती है डेट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन. Question number 114 is in an airport size of a holder is controlled by which one of the following? ये क्वेश्चन एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से है. सो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग हमारे सिलेबस में नहीं है. टू कनेक्ट कर्वेचर बेंडिंग ऑफ रेल इज डन ओनली इफ द कर्व इज. कर्वेचर को कनेक्ट करने के लिए बेंडिंग ऑफ रेल हम कब करते हैं? इफ द कर्व इज मोर देन 5, मोर देन 4, लेस देन 4 और मोर देन 9. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, मोर देन 4. क्वेश्चन नंबर 116 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज अ क्लिनोमीटर? इनमें से हम किस इंस्ट्रूमेंट को एज अ क्लिनोमीटर के लिए यूज़ कर सकते हैं? बक, सेक्टेंट, एबेनीज लेवल, ऑप्टिकल स्केयर या पीडोमीटर. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, एबेनीज लेवल. क्वेश्चन नंबर 117 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ मैप सब्सटीट्यूट? इनमें से हम किसको यूज़ कर सकते हैं एज अ मैप सब्सटीट्यूट? वर्टिकल एरियल मोजिक्स, टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ्स, omnimeters, oblique aerial photographs. So the correct option here is option A, vertical aerial photo mosaics. Question number 118 is what type of road is suitable for use on very low traffic thoroughfares? इनमें से low traffic thoroughfares के लिए कौन सी road suitable है? Bituminous solutions, concrete, composite or asphalt. So the correct option here is option A, bituminous solutions. Question number 119 is after which period roads were greatly improved in India? इंडिया में रोड्स जो है सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किस पीरियड में हुई थी? मौर्यन पीरियड में, मुगल पीरियड में, आर्यन पीरियड में या पलवान पीरियड में? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, मुगल पीरियड में. मुगलों के टाइम में रोड्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई थी इंडिया में.
And the last question is, in which range of Reynolds number the flow in pipes is considered a critical zone where the flow can be laminar or turbulent or in the process of change and is mainly unpredictable? किस रेंज ऑफ रेनॉल्ड नंबर में फ्लो को हम क्रिटिकल जोन में कंसिडर करते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्लो है वो लैमिनर भी हो सकता है या टर्बुलेंट भी हो सकता है? 3500 टू 5550, 3220 टू 5000, 3000 to 4500 and 2320 to 4000. So the correct option here is option D. In this range of Reynolds number, the flow is considered as critical flow, and in this case the flow may be laminar or turbulent, and in this range the flow is mainly unpredictable. So this was the last question of this paper. So I hope कि यहाँ तक जो मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए वो आपको सारे के सारे क्लियर कर दिए होंगे. अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी.